Good morning, everyone. Welcome you back in the topic lines and angle, the base of your geometry. I hope you all have enjoyed yesterday's revision sessions. If you haven't yet started solving questions, because yesterday I could find only very few messages and few doubts on the group, I'm expecting you all to work on quickly or start working on quickly on the revision, because I'm sure soon you will be getting a timetable of your PT1, and then thereafter you will be having very less time for revision. Okay, so keeping everything in mind, I have quickly started with the revision as early as possible. So take or make a best use of the opportunity that what you have got it. We have started our revision at the earliest. I know that okay, in the beginning of the topic or in the beginning of the revision session, it happens that you feel that this is something very new, or this is never taught, or this is something difficult. But believe me, after some time of your revision, you will find everything easy and interesting. So just what we need is nothing but to begin. Okay, so one has rightly said that nothing is difficult than to begin. Okay, so only begin to begin is difficult. Okay, once you begin, after that everything becomes easy. Okay, so let's get started with our today's topic, that is lines and angle. Okay, so few things that what we discussed in the last class, and as well as new things that what we're going to discuss in this class, I have done written it on the board. Linear pair. What do you mean by linear pair? The adjacent angles which are on the line, straight line, are called as a linear pair. Now here is A and B are called as a linear pair. And what is the speciality of linear pair? A plus B is equals to 180. But the problem is the linear pair can be seen in any forms like this, or maybe even sometime it is like this. So all these three angles sum is equals to 180. Of course it is not called as a linear pair, but basically the concept remains same. Okay, so keep that in mind, that is not just about looking like this, how it is seen in the diagram number first. Okay, it can be even some other forms that of course we will be looking into your questions after this, so don't have to worry for it. Vertically opposite angle. So try to understand about vertically opposite angle. What do you mean by vertically opposite angle? If two line intersect, it's a new concept for you. If two line intersect, this angle and this angle are called as a vertically opposite angle. Okay, once again I repeat, when two lines intersect each other, the angles formed exactly opposite to each other are called as a vertically opposite angle. But not only these are vertically opposite angle, even the remaining angles are also considered to be a vertically opposite angle. And there is a speciality of the vertically opposite angle. Imagine if this is 1, this is 2, this is 3 and 4. Then angle 1 is supposed to be equal to angle 2, and angle 3 is nothing but equal to angle 4. Now why do you think that they are equal? That of course we have a proof of this, but later on, not now. But now you need to remember it, that these are equal. So there can be many such angles like in this way as well. So there are many angles now in this case which are vertically opposite. We rightly can guess that these two angles are vertically opposite angle. Here are the two angles vertically opposite angle. Here are the two angles vertically opposite angle, and here is the another one. So that's what we consider here. When two or more than that line intersect, the angles getting formed are vertically opposite angle, and of course they are equal. Okay, the good thing is they are equal. So that is clear to you. And the last point that what we are going to discuss is nothing but adjacent, ADJ, adjacent angles at a point. That means if there is a point and there are many angles at the point like this, many angles, okay, at the point. So all these are nothing but called as angles at a point of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so these are 6 angles at a point. So it's very clear, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 together gives you equal to 360 degree, double of 180, 360 degree. Okay, and how and why it is so, that we are going to discuss after this right now. So तीन pair of angles, तीन type of angles we have discussed, and the same we are going to work on as a exercise after this. तो सबसे पहले ये कंप्लीट करते हैं. ये सिक्स्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, आई रिमेंबर, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 मुझे प्रूव करना है. और आपको पता है मैंने क्या किया था उस टाइम में, जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ. मैंने एक लीनियर पेयर को अंडरस्टैंड किया था. ये स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर दिख रहा है क्या, देखो आपको. तो इफ दिस इज द लीनियर पेयर, वी नो दैट a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वी राइट अ रीजन हियर, लीनियर पेयर.
pair, right? Similarly, if I cancel this and if I try for the another linear pair, तो ये हो गया the second linear pair. तो ये दिख रहा है आपको अगर if you understand. तो B plus C is also equals to 180 degree and the reason is linear pair. So this is equation number 1, this is equation number 2, right? And now what I have to do, I have to surely add these two equations because I needed 360 here, right? So 360 I'm getting by adding these two equations. So I don't have to do it in this manner. You can just write it adding equation 1 and 2. What we get? A plus D plus B plus C. Together, this and this I have added is equals to 180 plus 180 going to give you 360 degree, and that's the required result. So it was very simple, right? Very good, interesting. तो ये तो हमने already किया था, तो I am not going to waste so much of time in explaining what and how it is. But seventh one, yes, of course we are going to do that. Now I am supposed to prove that. Now this is the point. This is what I was telling you, that this is the adjacent angle at a point. देख लो ये सारे जो angles है ये at a point है, adjacent angles at a point, and of course it is supposed to give you some as 360 जैसे हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था. यहाँ पे कम ज़्यादा एंगल थे, यहाँ पे कम एंगल है, उतना ही डिफरेंस है, बट दीज आर ऑल adjacent angles at a point. ओके, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि वो इक्वल टू 360 है, इसको प्रूव कैसे करना है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा क्वेश्चन हो जाता है. ओके, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है. करना क्या है यहाँ पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ ज़्यादा काम डिफ़िकल्ट नहीं करना है, हमें करना एक सिंपल सी बात है. यहाँ पे एक किसी भी साइड को, तीन साइड्स मेरे पास है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, तीनों में से किसी को एक को जस्ट एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट माई कंस्ट्रक्शन, ये है मेरा कंस्ट्रक्शन. दैट्स इट. समझ में आ गई बात? गेटिंग इट? अभी इससे क्या होगा, क्या होगा, ठीक है. इससे एक चीज़ तो होगी, यहाँ पे चार एंगल्स तैयार हो रहे, एक एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. नेम इट इन द सिमिलर मैनर, एंगल 1 2 3 4 एज यू विश, ठीक है. तो हमने सब कुछ, हमारा सेटअप तो बना दिया. अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ समझ में आ रहा है कि देखो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है. ओके, दे आर लुकिंग सिमिलर, राइट. सो व्हाट आई गेट हियर इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, मे बी ई नाम दे देता हूँ, ठीक है. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटेंड ए ओ टिल ई, ऐसे, ठीक है. और यू कैन जस्ट से एक्सटेंड ए ओ ऑल्सो इज इनफ, ठीक है. तो इजंट इट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अभी देखो यहाँ पे रीजन क्या है, लीनियर पेयर. देखो ठीक से, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज अगेन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन क्या है, लीनियर पेयर. अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे क्योंकि 360 चाहिए. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. Equation number 1, equation number 2, I can say that adding equation 1 and 2, ठीक है. लेकिन ये तो हमें प्रूव कुछ और करना था, ए ओ बी, बी ओ सी एंड ए ओ सी करना था, लेकिन हमें कुछ एंगल 1 2 3 मिला है. एंगल 1 का मतलब क्या होता है, एंगल ए ओ सी. देख लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 चेक कर लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये दोनों को मिला के जो होता है वो होता है बी ओ सी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. 2 एंड 4 को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये मिल जाएगा मुझे बी ओ सी. तो इस 2 एंड 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ सी. प्लस एंगल 3 का मतलब क्या हो गया, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंड इज दैट इक्वल टू 360 डिग्री, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट सॉल्यूशन. Okay, so you can represent this answer properly. Okay, today I'm expecting all these question you have to send it to me. I'm going to send the message same way in the group because so many days you haven't sent things to me. So today I want everything to be sent to me. At the same time, I'm expecting you all to send me the assignment sent to you yesterday नहीं, on Saturday. इवन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट ओनली थिंग इज दैट कुछ डाउट है तो वो डाउट हमने सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद कंप्लीट असाइनमेंट आई शुड सी यू सेंडिंग इट टू मी डायरेक्टली. ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये अभी हमें यूज़ करना है. अभी तक जो हमने किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट देखा, कौन सा वाला, एंगल सेटअप पॉइंट देखा, ये सारी चीज़ें हमें अभी क्या करनी है, सॉल्व करना है, यूज़ करना है, सॉल्व करना है. अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है. तो ये रहा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है. तो आपको तो पता ही है क्या करना है, 4x
प्लस 2x इज इक्वल टू 180। कुछ नहीं, क्वेश्चन ये है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 30। ये बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल है, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, इन दोनों का एडिशन 180। तो 2x इज इक्वल टू 110। अब ये कैसे आ गया, शिफ्टिंग, राइट। और ये आ गया x इज इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे बस आपको लीनियर पेयर लिखने की जरूरत हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड सा है, तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है बहुत ईजी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी है, एक तो ये दिया हुआ है k इज इक्वल टू 180, एंड दूसरा दिया है ऐसे लीनियर पेयर में। इसका मतलब क्या बनता है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पता है लीनियर पेयर। और y x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी दिया हुआ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखना पड़ता है। करना क्या है, देखो ये तो दो वेरिएबल है, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल में लाना है। मतलब क्या करना है, इसका यूज़ करके हमने जो लीनियर इक्वेशन में किया था, यू रिमेंबर दैट, एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है, यू रिमेंबर इट। ओके, याद है, नहीं याद है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। x को लिखो, क्या आता है, x इज इक्वल टू क्या आता है, y को उधर शिफ्ट किया तो 80 प्लस वाई। अभी इस x को जो 80 प्लस वाई है वो इस इक्वेशन में पुट करना है जो अभी हमें मिला है। तो y प्लस एक्स, एक्स की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 80 प्लस वाई इज ऑफकोर्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, दैट्स द ओनली थिंग। कुछ नहीं, इसका यूज़ करके इसमें पुट करना है, मतलब एक इक्वेशन का यूज़ करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो हमने x निकाला, आप y भी निकाल के पुट कर सकते हो, कुछ भी करो एज यू विश। ओके, 80 को उधर शिफ्ट कर देते हैं और y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50। ये आ गया मेरा आंसर, लेकिन y आ गया, अभी x आना बाकी है। तो x क्या होगा, देखो ज़रा ठीक से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। y अगर 50 है तो आप लोग x फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली बाय लीनियर पेयर, और यहाँ पर भी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 प्लस वाई। तो व्हाट इज इट, 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 130। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस। ये तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये भी खुद से कर सकते हो, ये भी खुद से कर सकते हो। इन तीनों का एडिशन 180 होगा, इन तीनों का एडिशन 180 होगा, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला जो पहला वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये अगर 2y है तो ये भी 2y होगा, क्यों बताओ, सिंपल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 3y है तो ये भी 3y होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। ये वाला कॉन्सेप्ट है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, एक होता है। अभी ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो y प्लस 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर है ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप लोग y फाइंड कर सकते हो कैसे भी करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। फाइंड x एंड y इफ x इज टू y इज इक्वल्स टू 3:2। अभी ये रेशियो वाला जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लेते हैं। याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी गेट समथिंग लाइक अ रेशियो कॉन्सेप्ट, उसको करना क्या होता है, कॉमन मल्टीपल लेना होता है। दैट मीन्स लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, जस्ट इमेजिन इट इज k। x नहीं लिया, नॉर्मली हम लोग x लेते हैं या फिर a लेते हैं, अभी हाँ k नहीं चाहिए तो a लेते हैं, ठीक है। तो अभी याद रखो इस चीज़ को कि x ऑलरेडी नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी x इज देयर इन द क्वेश्चन। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2b। सेपरेट करने के लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। याद रखो, अभी भी पता नहीं, सॉरी y 2b नहीं है, सॉरी 2a रहेगा, सॉरी। तो x इज इक्वल्स टू 3a एंड y इज इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। ये जो कॉमन मल्टीपल है ये हमने कैसे यूज़ किया, ये समझ में आ गया आपको। ओके, नाउ वी कंटिन्यू विद इट। आई नो दैट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 3a + 2a कितना हो जाएगा, 5a = 180 डिग्री, ठीक है ना। तो a = देखते हैं कितना होगा, कितना होगा। a = 5 3 ज़ा 15 आणि 3 6 ज़ा 36 डिग्री। तो a मिल गया मुझे 36 डिग्री। बट पूछा क्या है, टू फाइंड x एंड y। तो x कितना है मेरे पास, 3a, 3 इंटू a कितना है 36, दिस विल गिव यू x। एंड व्हाट इज y, 2 इंटू 36 एंड दिस विल गिव यू x। दिस इज द वे हाउ वी कैन कंप्लीट द आंसर, ठीक है ना, सिंपल है ना आज तो। लेकिन आपको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करके भेजना भी है, क्योंकि यहाँ आप लोग लेजीनेस दिखाओगे तो ये टॉपिक कभी नहीं आएगा आप लोगों को। और ये नहीं आया मतलब ज्योमेट्री का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। इसके बाद आपका रियल ज्योमेट्री शुरू हो जाता है, बहुत सारे टॉपिक है इसके बाद ज्योमेट्री के, ओके। मतलब ज्योमेट्री विल बी देयर आफ्टर दिस, लाइक ट्राइंगल है, इनइक्वालिटी है, क्वाड्रिलेटरल है, एरिया पैरेललोग्राम है, सर्कल है, कंस्ट्रक्शन है, सभी ज्योमेट्री शुरू हो जाता है इसके बाद। और ये टॉपिक अगर डिफिकल्ट लगा तो सारे डिफिकल्ट लगेंगे, याद रखो। तो इसको करना ज़रूरी है, ठीक है। एनीवे ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन जस्ट स्किप दैट। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ गया, देख लो, रेशो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ अगेन। लेट कॉमन मल्टीपल बी a, ठीक है। तो x विल भी क्या आ जाएगा, 2a एंड y कितना आ जाएगा, 3a हो जाएगा। याद रखो कभी भी अब जब आप लोगों को डायग्राम दिया है तो डायग्राम में अगर जब वैल्यू आप पुट करोगे ना तो ज़्यादा इजीली दिमाग में आता है, समझ में आता है, ठीक है। आपको फाइंड z करना है, x एंड y नहीं करना है। फाइंड क्या करना है आपको, z। लेकिन z आप फाइंड नहीं कर सकते इसमें, ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल यू आर गिवन सम वैल्यू, लाइक ये वैल्यू अगर दी होती तो ही फाइंड कर सकते। तो z नहीं करना है आपको फाइंड, मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। x एंड y फाइंड करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, याद सोचो मत, x, y फाइंड करो, बस दैट्स इट। z के बारे में सोचो ही मत। चलो शुरू करते हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि ये जो x, y एंड 90 है टुगेदर इट इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन को ढूंढो। एक बार आपने स्ट्रेट लाइन को ढूंढ लिया ना तो सब कुछ मिल गया, आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। अभी इट्स वेरी क्लियर दैट के x + y + 90 = 180 डिग्री। तीनों का एंगल का एडिशन ही 180 आएगा, राइट। तो x है 2a + 3a, 90 को उधर शिफ्ट कर दे तो = 90 हो जाएगा, 180 - 90 90, हाँ यस 90। तो 5a = 90 हो गया। तो a कितना आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, राइट। तो a आ गया 18 डिग्री। और भी x फाइंड करना है तो x कितना होगा, x = 2a, वही है लास्ट वाला क्वेश्चन, वैसे ही है, बस अलग वैल्यू है उतने। y = 3a एंड हियर इज द आंसर, ओके, यू कैन फाइंड इट ऑल बाय योरसेल्फ, बराबर है। ये भी उसी कैटेगरी का है, बस 3 रेशोज है इधर एंड आपको तीनों के तीनों फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। 3 रेशोज दिए मतलब कुछ अलग थोड़ी है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी a, तो x विल बी इक्वल टू a, y विल बी इक्वल टू 3a एंड z = 5a। एंड आई नो दैट कि इन सब का एडिशन जो 90 है, सॉरी 180 है, 90 को पकड़ के वो सब का एडिशन कितना है, 180 है। तो ऑल द एंगल्स लाइक 90 + x + y + z इज ऑल दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 90 उधर शिफ्ट कर दिया, a + 3a + 5a इज ऑल दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 क्यों, ये 90 उधर शिफ्ट हो गया, 180 - 90 90। 8 + a मतलब 9a = 90, a इजीली 10 आ जाएगा, 90 / 10 डिग्री हो गया। मुझे आंसर आ गया, x y z मिल सकता है, मुझे मिल सकता है ना, दैट्स इट। ईजी है ना, क्वेश्चंस बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो गया, दैट्स इट। देखो आज का डे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट करो सारे क्वेश्चंस, होमवर्क भी कंप्लीट करना है, मतलब ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, ज़्यादा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हो जाता है। मुझे मैं बता दूँ आपको, एक मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड वीडियो एक 25 मिनट्स का, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ काम नहीं है आज का, ठीक है। तो 2 काम मैं आपको दे रहा हूँ आज, ये आपको सेंड करना है एंड आपने अगर रिवीजन शुरू नहीं किया है तो वो भी शुरू करना है, ठीक है। पर्पसली मैंने सैटरडे संडे पकड़ के दिया था, ठीक है। आपने एंजॉय किया सैटरडे संडे, अगर इन केस अभी भी टाइम नहीं गया है, आज बैठो, रात को बैठो, ओके, कंप्लीट करके सोना, ओके। वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो जितना आप लोग इस टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा,
ओके, ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है तो स्टार्ट करो, वर्क करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैच्योर बनो, सिंसियर बनो, ठीक है। यही प्रे करता हूँ मैं कि यू ऑल विल बी डूइंग इट and you all will be completing it, and when I'll ask you, each and every one of you will send it to me quickly. Okay, so I'm just waiting for maybe 2 more days, and after that we will continue with the doubt session, and उसके बाद में I will ask you to send it to me. ठीक है, और इसके बारे में, रिविजन के बारे में, आई एम वेरी सीरियस, आई विल बी नोटिंग इट डाउन एंड आई विल जस्ट क्विकली कॉल योर पेरेंट्स अकॉर्डिंगली. So before I call your parents, be ready and get it done. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.